Hello everyone. So today we are going to study about introduction of DNA into animal cells. We have already studied about introduction of DNA into bacterial and plant cells in the previous video, and today we are going to dive deep into an introduction of DNA into animal cells. So DNA is basically contains all the genetic information of any particular organism. Introduction of DNA into animal cells involves the delivery of foreign genetic material if we want to introduce obviously into the host cell's genome or the cytoplasm. Cytoplasm in case of plants. So yeah, gene transfer to animal cells can be carried out in different ways, in different strategies can be used to transfer the DNA into host cell. So, DNA can be transferred into different cell types via cell culture, either to study gene या तो हम जीन स्टडी करने के लिए डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर हम उसके रेगुलेशन के लिए उसके जेनेटिक रेगुलेशन के लिए करते हैं या हम लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस बेसिकली हम लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए अपना इंटरेस्ट का जीन इंट्रोड्यूस करके प्रोडक्शन करने के लिए भी यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो यूज टू मेक ट्रांसजेनिक एनिमल्स एज वेल. प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है, जीन थेरेपीज के लिए यूज होता है. इट इज वाइड यूज in terms of the process. So it is very important and vital process, and it is extensively being used in the research industry. So, gene transfer to animal cells can be achieved via two processes. Gene transfer हम दो processes से कर सकते हैं. पहला process है अगर हम directly DNA को introduce कर दें cell के अंदर. अभी directly अगर हम DNA को introduce कर रहे हैं तो that will be a attack strategy. Because हम intact हमारा जो DNA है उसे introduce करवा रहे हैं into the host cell. और दूसरा प्रोसेस ये होता है जब हम सेल्स को परसुएट करा सकते हैं कि वो डीएनए को अपटेक करें. दैट इज स्टेल्थ स्ट्रेटजी. These are the two strategies which are majorly used in the process of transforming DNA into the host cell or animal cell. Attack strategy के अंदर क्या होता है? It uses physical methods to force DNA into cells. Example are ballistics, micro injection एंड पार्टिकल बम्बार्डमेंट. बहुत सारे इस तरीके के प्रोसीजर्स हैं. केमिकल ट्रांसफेक्शन के अंदर केमिकल ट्रांसफेक्शन मेथड्स भी होते हैं जहां पर हमारा कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन हो गया, डीईएई डेक्स्ट्रान मेथड हो गया. ये सब हमारी स्टेल्थ स्ट्रेटेजी में आता है जहां पर हम सेल्स को बेसिकली परसुएड करवा रहे हैं कि सेल्स जो हैं वो डीएनए को अपटेक करें, and that's how this process is done. So these are the two basic strategies in which we used in transforming DNA into the host cells. Now, एक और तरीका है जिसे हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं, which is also a second method to transform DNA. ट्रांसडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक वायरस का एनिमल वायरसेस की मदद से एनिमल वायरसेस के अंदर हमारा जो फॉरेन डीएनए है वो फॉरेन डीएनए जो है उसे इंट्रोड्यूस करके पैकेज करके हम वायरस हैज द नेचुरल कैपेबिलिटी टू इन्फेक्ट एनिमल सेल्स. तो हम उस तरीके से एनिमल सेल्स को इन्फेक्ट कराते हैं. हमारे इस वजह से वायरल सेल्स जो हैं अपना फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं और वहां पर वो मल्टीप्लाई हो जाता है. सो दिस इज ऑल्सो वन मेथड टू ट्रांसफॉर्म डीएनए इनटू द प्रोसेस. तो हम जब डीएनए को ट्रांसफर करते हैं इनटू एनिमल सेल्स, उस प्रोसेस को हम ट्रांसफेक्शन बोलते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल्स. अगर आप प्लांट सेल्स की बात कर रहे हो या आप बैक्टीरियल सेल्स की बात कर रहे हो तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल्स देन इट इज नोन एज ट्रांसफेक्शन. ओके, so direct transfer of DNA into animal cells can be accomplished by a number of techniques that I told you. Either we can force the DNA, or we can persuade the cells to take in the DNA. So this process is known as transfection. Transfection is the process of deliberately introducing nucleic acids into eukaryotic cells. Okay.
It is commonly used in molecular biology to study gene function and regulation. Therapeutic research में use आते हैं, तो ये सब चीजों में ट्रांसफेक्शन का जो प्रोसेस है वो यूज आता है। ट्रांसफेक्शन का जो टर्म है बेसिकली जब फाज डीएनए को एनिमल सेल्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया था तब ट्रांसफेक्शन का टर्मिनोलॉजी आया था। उसी तरीके से उसी सेम वे में जैसे फाज डीएनए इंट्रोड्यूस कराया गया था, हम ट्रांसफेक्शन के अंदर भी फॉरेन डीएनए को फोर्सफुली इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द होस्ट सेल। ट्रांसफेक्शन एक जगह और यूज होता है अगर कोई ऑन्कोजीन का एक्टिवेशन हो जाता है एक बॉडी के अंदर। ऑन्कोजीन इज बेसिकली अ कैंसेरियस प्रोड्यूसिंग जीन, कैंसेरियस सेल्स प्रोड्यूसिंग जीन, तो उसका एक्टिवेशन को भी हम ट्रांसफेक्शन कहते हैं। बट these are the two terminologies which are this is the one terminology which we extensively used for this purpose. Now transfection also is of two types. One is transient transfection, second is stable transfection. Now what are they? What is transient transfection? What is stable transfection? See, DNA इंट्रोड्यूस कराने के बाद DNA का फेट क्या होता है डिपेंड्स ऑन the strategy which we used for the transfection process. The fate of DNA introduced into the cells depends on the vector system being used. What is the vector you are using? उस हिसाब से जो वेक्टर आप यूज करोगे, जो प्रोसीजर आप यूज करोगे, उस हिसाब से फिर फेट DNA का डिसाइड होता है। So in one fate, the DNA introduced into the cells replicate and express without integration. एक फेट में क्या होता है, हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है डीएनए को सेल के अंदर। डीएनए हम नॉर्मली नेचुरल प्रोसेस के थ्रू अंदर जाता है एंड डीएनए अंदर जाने के बाद वो नेचुरली एक्सप्रेस करता है, मल्टीप्लाई करता है बेसिकली। तो उस प्रोसेस को हम ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन बोलते हैं बिकॉज वी डू नॉट रिक्वायर टू इंटीग्रेट द डीएनए इनटू द जीनोम। Whereas in stable transfection, DNA integrates into the host genome. DNA integration करना पड़ता है, तभी जाके वो expression जो होता है वो possible होता है। So if the introduced DNA integrates into the host genome and maintained permanently in the cell, तो हम उसे stable transfection बोलते हैं। ये जो process है stable transfection का, ये long term expression में अगर हमें long term के लिए multiply करवाना हो DNA को, तो उसके लिए हम stable transfection use करते हैं। It requires selection markers and screening because obviously ये stable like long term के लिए है, तो stable selection markers इस procedure में लगते हैं। हमें integrate करवाना है तो selection marker screening वो सब procedure इसके अंदर होता है। Okay. Transient transfection on the other hand can be useful for rapid assays and protein production. आपको फटाफट immediately कुछ स्टडी करना है एसेस डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, उसके लिए हम शॉर्ट टर्म एक्सप्रेशन के लिए 24 to 96 आवर्स के लिए आपको रेप्लिकेशन चाहिए स्टडी के लिए बेसिकली, तो ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन की मदद से किया जाता है। दिस इज हाउ these two strategies are used. Now, for the transfection purpose, there are two basic strategies. One is chemical transfection, second is physical transfection. First, we will study about chemical transfection strategies. Chemical transfection, as suggested by the name, can be done using chemicals. So, basically, the chemical transfection method involves the interaction of negatively charged nucleic acid यानी कि अपना DNA with positively charged lipid और like with positively charged carrier molecules. हम DNA को DNA is negatively charged, right? DNA को हम positive charged molecules के साथ, जैसे lipid हो गया और polymers हो गए, उसके साथ हम भेजते हैं किसी भी होस्ट सेल के अंदर, हम उसके साथ ट्रांसफर करवाते हैं डीएनए को। उसकी वजह से क्या रहता है, जो डीएनए नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जब हम पॉजिटिव चार्ज का कोई कोटिंग करके, लिपिड वेसिकल का कोटिंग करके या किसी तरीके से हम लिपिड या पॉलीमर या पॉजिटिव कैटायनिक्स कोई मॉलिक्यूल को यूज करके जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सो वो नेगेटिव
डीएनए को सेल के अंदर इजीली इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं, एक इजीली इंट्रोडक्शन हो जाता है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग द जीन इनटू द सेल बाय एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से वो इजीली वो जो इंट्रोडक्शन है वो हो पाता है। इसीलिए हम केमिकल ट्रांसफेक्शन जब भी यूज करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि डीएनए को, हम डीएनए नेगेटिवली चार्ज, हम उसे पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से डीएनए जो है वो सेल के अंदर डायरेक्टली जा सके। नाउ केमिकल ट्रांसफेक्शन मेथड्स में हम केमिकल यूज कर रहे हैं डेफिनेटली। ओके, वन मोर थिंग, दे आर इजी टू यूज, these processes are very easy, they are low cost, you know, they are less expensive, they are very effective in many cell types and it is widely used. Chemical transcription strategies are widely used. तो अभी किस किस तरीके से केमिकल ट्रांसफेक्शन स्टडीज, व्हाट ऑल टेक्निक्स वी कैन यूज इन केमिकल ट्रांसफेक्शन। सो फर्स्ट इज कैल्शियम फॉस्फेट ट्रांसफेक्शन। कैल्शियम फॉस्फेट हमने प्लांट्स में भी सीखा था, उसी तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट ट्रांसफेक्शन हमारा एनिमल सेल्स के साथ भी होता है। कैल्शियम ट्रांसफेक्शन में हम क्या करते हैं, कल्चर्ड सेल्स जो होते हैं जहाँ पे जिसमें हमें इंट्रोड्यूस कराना है, वो कल्चर्ड सेल को हम फॉस्फेट बफर के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। कल्चर्ड सेल प्लस फॉस्फेट बफर, उसमें हम अपना डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं एंड कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं। ये चारों जब मिक्सचर में जाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, प्रेसिपिटेशन करता है। मैंने उस टाइम पे भी बताया था, प्रेसिपिटेट होने की वजह से वो जो डीएनए है वो सेल्स के वॉल पे पहुंच जाता है एंड देन सेल उसे अपटेक कर लेते हैं। सो दिस इज वन प्रोसेस, केमिकल फॉस्फेट ट्रांसफेक्शन, जहां पे हमने डीएनए को फॉस्फेट बफर के साथ यूज किया, देन डीएनए हमने ऐड किया, वहां पर सेल्स ऐड किए एंड कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होने की वजह से डीएनए जो है सेल्स के वॉल पे चला जाता है, स्टिक हो जाता है एंड दैट्स हाउ cells end up taking the DNA. So this is one method. Cells endocytosis, endocytose the DNA calcium phosphate complex. DNA कैल्शियम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी वजह से सेल्स जो है वो क्या कहते हैं, उनका जो वॉल जो होती है वो रप्चर हो जाती है और सेल्स जो है वो अपटेक कर पाते हैं डीएनए को। So this is how DNA is internalized through endocytosis. This process is cost effective but may show variable efficiency and toxicity. कॉस्ट इफेक्टिव है नो डाउट, बट मे बी पॉसिबल कि अलग अलग तरीके से ये डीएनए को, क्योंकि सी व्हेन यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द डीएनए यूजिंग अ केमिकल मेथड, देयर इज नो गारंटी ऑफ कितना डीएनए हर बार सेल्स अपटेक कर रहे हैं, राइट? वी आर जस्ट यूजिंग द स्टेल्थ स्ट्रेटेजी हियर, so the results can vary definitely, and sometimes cytotoxicity has been observed. Next method is DEAE dextran transfection. DEAE is diethylaminoethyl dextran. So it is basically a cationic, like positively polycationic carbohydrate. इसे हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये डीएनए और सेल के अंदर इंटरैक्शन करवाता है। इट फैसिलिटेट्स द इंटरैक्शन बिटवीन डीएनए एंड द सेल, और इसी तरीके से ये इंटरनलाइजेशन को भी हेल्प करता है, डीएनए इंटरनलाइजेशन में भी हेल्प करता है। सो डीएनए इज मिक्स्ड विद डेक्स्ट्रान व्हिच इज अ पॉलीकेटायनिक पॉलीमर और कार्बोहाइड्रेट, और इस वजह से डीएनए जो है वो अटैच हो जाता है सेल की मेम्ब्रेन से, नेगेटिवली चार्ज सेल मेम्ब्रेन से, और जिस वजह से सुटेबली ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन हो जाता है। बट अगेन this can be sometimes cytotoxic, like this can show cytotoxicity in some procedures. Okay, then liposomes and lipofaction. Liposomes and lipofaction. See, liposomes में क्या होता है, liposomes vesicles होती हैं that have an aqueous compartment enclosed by a phospholipid bilayers. Liposomes वेसिकल होती है जिसके सराउंडिंग में एक्वस कंपार्टमेंट होता है enclosed by a phospholipid bilayer.
लाइपोसोम्स 11। इसे हम डीएनए डिलीवरी सिस्टम में कैसे यूज करते हैं? सो डीएनए को डीए मतलब जो लिपिड वेसिकल्स होती हैं वो एंट्रैप कर लेती हैं लाइपोसोम्स, सॉरी, जो लिपिड वेसिकल्स होती हैं वो डीएनए को एंट्रैप कर लेती है inside the aqueous compartment, and that's how we deliver the DNA directly into the cytoplasm. The efficiency of liposome mediated gene transfer can be enhanced by incorporating viral proteins that facilitate the active fusion between viral envelopes and cell membranes. हम अगर वायरोसोम्स जिसे हम बोलते हैं, हम अगर उन्हें यूज करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो वायरल एनवेलप्स होते हैं और जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में इजीली इंट्रैक्शन हो जाता है, इसलिए हम यूज कर सकते हैं. बट इफ यू आर नॉट यूजिंग वायरोसोम्स दैट्स परफेक्टली फाइन. लाइपोसोम्स इज बेसिकली लाइपोसोम्स की मदद से हम बेसिकली लिपिड वेसिकल के अंदर डीएनए इंट्रैप करके वो पॉली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स के एक्वस एनवायरनमेंट में जब हम डीएनए इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इजीली डीएनए इंट्रोड्यूस हो जाता है. लिपिड वेसिकल्स इजीली जो है मतलब डीएनए को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, बिकॉज डीएनए इज अगेन नेगेटिवली चार्ज, लिपिड वेसिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, एंड देन जो सेल मेम्ब्रेन आप जिसके साथ आप इंटरेक्शन करवा रहे हो दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज. सो पॉजिटिव ऑफ लिपिड वेसिकल्स, पॉजिटिव चार्ज ऑफ लिपिड वेसिकल्स एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उस तरीके से वो अट्रैक्शन होने की वजह से डीएनए अपटेक हो जाता है. सो दैट्स हाउ दिस प्रोसेस इज डन. इट इज अ एफिशिएंट प्रोसेस, रिप्रोड्यूसिबल प्रोसेस, बहुत इसका जो कॉपी नंबर है वो बहुत ज्यादा हाई है एंड सुटेबल फॉर मेनी सेल टाइप्स. लाइपोफेक्शन क्या होता है? लाइपोफेक्शन में हम केटायनिक या न्यूट्रल लिपिड मिक्सचर्स यूज करते हैं जिसे विच स्पॉन्टेनियसली एसोसिएट विद नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. लाइपोफेक्शन में हमने अगेन लिपिड मिक्सचर्स यूज किए, या तो कैटायनिक हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं, वो डीएनए के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. अनलाइक लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन वेयर द डीएनए इज एनकैप्सुलेटेड विद इन अ लिपिड वेसिकल, लाइपोफेक्शन के अंदर हमने लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन में क्या किया, हमने डीएनए को एंट्रैप कर दिया, एनकैप्सुलेट कर दिया विद इन लिपिड वेसिकल. बट लाइपोफेक्शन में क्या होता है, डीएनए लिपिड कॉम्प्लेक्स बनता है, लाइपोप्लेक्स बोलते हैं जिसे हम, which is taken up efficiently by endocytosis, जो कि एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से इजीली जो सेल्स हैं उसको डीएनए को टेक अप कर पाते हैं. दिस इज हाउ these two things are different. Okay, endocytosis, if you are not understanding what is endocytosis, it is a cellular process where a cell takes in substances from its external environment by engulfing them within its cell membrane. एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, वहां पर सेल मेम्ब्रेन इजीली कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को इन्वेड कर पाती है. दैट्स हाउ एंडोसाइटोसिस इज डन. दिस इज अबाउट लाइपोसोम्स एंड लाइपोफेक्शन. नेक्स्ट इज सेल और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. सेल और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं जिन केमिकल्स को हम फ्यूजोजेंस भी बोलते हैं, जैसे कि पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल एक केमिकल हो गया, और इन्हें हम फ्यूजो वायरसेस भी हम यूज कर सकते हैं. वायरसेस आर आल्सो फ्यूजोजेनिक एजेंट्स. तो इन केमिकल्स या वायरसेस का यूज करके हम सेल मेम्ब्रेन को फ्यूज कर देते हैं. लाइक इट कॉजेज द सेल मेम्ब्रेन टू फ्यूज टुगेदर, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू ट्रांसफेक्ट द एनिमल सेल्स by mixing them with other cells containing our interest of DNA, right? हमारा जो interest of DNA है जिस सेल में है, और जो दूसरा हमें जो होस्ट सेल है हमारे पास, हमने केमिकल के प्रेजेंस में दोनों का सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगा. सेल मेम्ब्रेन फ्यूज होने की वजह से जो हमारा होस्ट सेल है वो डीएनए को अपटेक कर पाएगा अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. दिस इज हाउ हम सेल मेम्ब्रेन को फ्यूज करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स, फॉर एग्जांपल पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल, which is a fusogenic chemical, or we can also use viruses for this process. Viruses are also fusogenic agents. तो यहाँ पे अगेन हमारा जो होस्ट सेल है और जो हमें क्या कहते हैं, जिस सेल में हमारा फॉरेन डीएनए है उसको हम साथ में रख के विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है. सेल मेम्ब्रेन फ्यूज होने की वजह से जो हमारा डीएनए है वो दूसरे होस्ट सेल के सेल में इजीली ट्रांसफर हो जाता है. सो इट
also directly delivers the genetic material into the cytoplasm of the cell, of the host cell. Okay. शेपनार करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोसेस को यूज किया था, इस मेथड को यूज किया था. Bacterial protoplasts, he used bacterial protoplast to transfer mammalian cells in culture by treating bacterial cells with chloramphenicol to amplify the plasmid contents and lysozyme to remove the cell. तो उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियल प्रोटोप्लास्ट को ट्रांसफेक्ट करने के लिए यूज किया मेमेलियन सेल्स को, कल्चर किया बैक्टीरियल सेल्स को, केमिकल डाला क्लोरमफेनिकॉल एंड उसी तरीके से उन्होंने एम्पलीफाई किया प्लाज्मिक कंटेंट, लाइसोजाइम को यूज किया सेल वॉल रिमूव करने के लिए, एंड दैट्स हाउ प्रोटोप्लास्ट को इंट्रोड्यूस किया इनटू मेमेलियन सेल्स, जिसकी वजह से डीएनए जो है हमारा इंट्रोड्यूस हो गया था. तो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस केम इन दी लाइट. Next method is receptor mediated transfection. Receptor mediated transfection क्या होता है? It involves the delivery of DNA to particular cells. You know, this process involves the delivery of DNA to particular cells by conjugation to a specific ligand. हम कोई particular ligand के साथ DNA को link करते हैं, and then the DNA will be delivered to the host cell. Ligand जो होता है interacts with the receptor on the cell surface. Cell surface के से कोई भी ligand का interaction जब तक receptor से नहीं होता है, it does not work. तो cell wall जो होती है, cell surface जो होता है, उसके ऊपर receptors होते हैं जहां पर वो ligand का affinity होती है. तो वो ligand interact करता है with receptors on the cell surface. इस वजह से सेल भी हमारा और हमारा लिगेंड भी और हमारा जो डीएनए अटैच है वो दोनों आराम से इंटरनलाइज्ड हो जाते हैं, सेल के अंदर जा पाते हैं. लेकिन इस प्रोसेस के अंदर एक प्रॉब्लम जो है विच इज कि यहाँ पे लिगेंड डीएनए कॉम्प्लेक्स बनता है which are internalized via endocytotic vesicles that generally fuses with lysosomes, और डीएनए जो है in the end डिग्रेड हो जाता है. मतलब सी डीएनए लिगेंड कॉम्प्लेक्स गया अंदर, बट डीएनए लिगेंड कॉम्प्लेक्स अंदर जाके लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज हो जाता है, जिस वजह से डिग्रेड हो जाता है डीएनए और एक्सप्रेस नहीं हो पाता, जिस वजह से जीन एक्सप्रेशन जो है वो फेलियर शो करता है इन सम केसेस. नाउ सम ऑफ द डीएनए, like I told you, some of the DNA escapes this fate and find its way to the nucleus to be expressed. कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ डीएनए इस फेट को एस्केप करके न्यूक्लियस में चला जाता है और वो एक्सप्रेस भी कर देता है कभी कभी अपने आप को. तो इस तरीके से दिस टेक्निक इज नॉट वेरी वाइडली यूज्ड, बट या दिस टेक्निक इज डेफिनेटली देयर, बट इट इज अ वेरी important technique in terms of why, because it has been seen that the transfection is done of up to 90% of cells if we are using this technique, carrying the appropriate receptor. The condition is it should carry the appropriate receptor. So the transfection is done of up to 90% of the cells we are using. Less success definitely has been observed for in vivo transfer, but in vitro transfer के लिए positively देखा गया है transfer होते हुए. So not very widely used, but yeah, technique is an important technique. Okay, moving ahead, we will study about physical transfection strategies. Physical transfection, as suggested by the name, physical method use किए जाते हैं. हमने प्लांट और बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल्स में भी पढ़े फिजिकल मेथड्स क्या होते हैं. अभी वापस से हम फिजिकल मेथड्स एक बार देखेंगे. फिजिकल मेथड्स जो होते हैं, फिजिकल फोर्सेस हम यूज करते हैं डेफिनेटली उसके अंदर. दे आर यूजफुल फॉर सेल्स रेजिस्टेंट टू केमिकल मेथड्स. ऐसे सेल्स जो केमिकल मेथड्स के लिए रेजिस्ट करते हैं या नहीं, हम उसे सुटेबल नहीं है केमिकल मेथड्स के लिए, तो हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू डीएनए ट्रांसफेक्ट कर सकते हैं. वन सच मेथड इज माइक्रो इंजेक्शन. माइक्रो इंजेक्शन में क्या किया जाता है, डीएनए जो है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियाई में इंजेक्ट किया जाता है कल्चर्ड सेल्स के. This is one method which is important for transfection. See, highly efficient on an individual cell basis.
दिस मेथड इज हाईली एफिशिएंट, लेकिन हम इंडिविजुअल सेल बेसिस पे हमें इंजेक्ट करना है, बिकॉज मैनुअली एज इन लाइक इंडिविजुअली ऑन ईच सेल। सो इसका उतना रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज cumbersome, less number of cells can be treated at one time. So that's that. But one major advantage of this technique is that it directly delivers the foreign DNA to any cytoplasmic organelles. Intact हमारा DNA deliver होता है, म्यूटेशन के चांसेस नहीं रहते हैं इसके अंदर, एकदम डायरेक्ट। जो हम केमिकल ट्रांसफेक्शन में मैंने बताया आपको, म्यूटेशन के चांसेस कभी कभी रहते हैं, या फिर कभी कभी होता है कि अमाउंट ऑफ डीएनए सेम नहीं ट्रांसफेक्ट हुआ, वो सारे केसेस हम केमिकल मेथड्स में देखते हैं। बट इसके अंदर ये चीज है कि इंटैक्ट डीएनए ट्रांसफर होता है। इसको हम बेसिकली हम यूज करते हैं, हमें एग्स ऑफ एनिमल्स में ट्रांसफर करना है, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने हैं, लाइक प्रोडक्शन करना है, या फिर उस साइट्स में हम ट्रांसफर करना है, तो उस प्रोसेस के लिए हम माइक्रो इंजेक्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज पार्टिकल बम्बार्डमेंट, और इसे हम जीन गन मेथड भी बोलते हैं। पार्टिकल बम्बार्डमेंट को हम माइक्रोबॉलिस्टिक भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल ट्रांसफेक्शन भी बोलते हैं। ये जो मेथड है इज अ रिलेटिवली रीसेंट ट्रांसफेक्शन टेक्निक, नॉट वेरी रीसेंट बट या इट्स नॉट वेरी ओल्ड टेक्निक ऑल्सो। इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम डीएनए को कवर करते हैं, कोट करते हैं बेसिकली गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स के थ्रू, एंड देन हम एक्सेलरेशन के थ्रू, बहुत हाई फोर्स के थ्रू सेल्स के अंदर हम डीएनए को ट्रांसफेक्ट करवाते हैं। आइदर हम हीलियम गैस यूज कर सकते हैं ट्रांसफेक्ट करने के लिए, या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज कर सकते हैं, बट वो डीएनए जो है वो गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल के साथ कोटेड रहता है, जिस वजह से इजीली पेनिट्रेट कर पाता है सेल मेम्ब्रेन में और डायरेक्टली डिलीवर कर देता है डीएनए को। इट इज यूजफुल फॉर हार्ड टू ट्रांसफेक्ट सेल्स, ऐसे सेल्स हैं जो ट्रांसफेक्शन इजीली नहीं होता, या टिश्यूज जो है इजीली ट्रांसफेक्शन नहीं होता, उसके लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। नेक्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रोपोरेशन. This is the last method of physical strategy. So electroporation के अंदर as suggested by the name electricity use होती है pores बनाने के लिए सेल के ऊपर। तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म इसका नहीं पता है, बट ये यहाँ पर यही है कि हम शॉर्ट इलेक्ट्रिक पल्स को यूज करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी पोर्स बन जाते हैं। टेम्पररी पोर्स बनने की वजह से फटाफट जो डीएनए जो है वो सेल्स अपटेक कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ फिजिकल ट्रांसफेक्शन टेक्निक सच एज इलेक्ट्रोपोरेशन इज डन. इट इज इजी, इट इज रैपिड, and it is able to transfect a large number of cells in a short time, but optimum electroporation conditions जो है वो determine करना जरूरी है इस प्रोसेस के लिए। ये इक्विपमेंट के अंदर होता है जिसे इलेक्ट्रोपोरेटर कहा जाता है। It is a highly effective technique but can cause cell damage if not optimized. So optimization of required conditions are definitely needed in this particular technique. Okay, next and the last method is transduction. ट्रांसडक्शन को हम वायरस मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम वायरस का यूज करते हैं, वायरल वेक्टर्स का यूज करते हैं टू ट्रांसफेक्ट द डीएनए. सो इट इज अ वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर. सी सर्टेन एनिमल वायरसेस, कुछ एनिमल वायरसेस की टेंडेंसी होती है या कैपेबिलिटी होती है उनके पास नेचुरली ह्यूमन सेल या मैमेलियन सेल को इन्फेक्ट करने की। उसमें डीएनए वायरसेस भी आते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए एडेनो वायरस समझ सकते हो, SV40 समझ सकते हो, आरएनए वायरसेस भी होते हैं, HIV हो गए, बहुत सारे अदर रेट्रो वायरसेस भी हैं। उस तरीके से हम क्या करते हैं, वायरसेस को मॉडिफाई करते हैं इस तरीके से कि हमारा जो फॉरेन जीन है, हमारा जो फॉरेन डीएनए है, वो हम वायरस के साथ मतलब इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि वो वायरस के साथ हमारे जो होस्ट सेल है उसको इन्फेक्ट कर सके. So it is modified in such terms, and then this vector can be used to transfer exogenous cells into suitable target cells at high efficiency.
अभी सी वायरसेस की टेंडेंसी होती है कि वो सेल के अंदर जाकर अपने न्यूक्लिक एसिड को मल्टीप्लाई करवाते हैं, दूसरे की न्यूक्लिक एसिड को, दूसरे की जो जेनेटिक पाथवे है उसको रोक देते हैं, और उनका जो जेनेटिक पाथवे है वो चलाने लग जाते हैं। वायरसेस का फंक्शनिंग इस तरीके से होता है। इस वजह से जब हमने हमारा फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया इनटू वायरस, एंड जब वायरस जाएगा इन्फेक्ट करेगा इनटू द होस्ट सेल और द मेमेलियन सेल, तो उससे क्या होगा, जो हमारा फॉरेन जीन है वो वहां पर मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से ये टेक्निक बहुत ही एडवांटेजियस टेक्निक है। But this is, like the cells replicate epizomally. They are not integrated, right? यहाँ पर हम इंटीग्रेट नहीं करवा रहे, इंटीग्रेट नहीं हो रहा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्पेस में। सेल्स जो हैं वो अपना क्या कहते हैं, रेप्लिकेट होते हैं, डीएनए जो है रेप्लिकेट होता है, so it replicates epizomally. It is a common technique used in gene therapy and long term expression studies, जहाँ पे हमें long term के लिए study करना हो, और because see virus का एक ये tendency है that they will multiply and multiply and multiply and multiply, they will not stop at a certain point. So yeah, what are the advantages of using an animal virus? See, उनका बहुत efficient mechanism होता है, evolved efficient mechanism होता है to absorb to the surface of the host cell, सेल्स के अंदर एंट्री लेने का बिना डैमेज किए हुए सेल्स को, उस तरीके से वो बहुत फायदेमंद रहता है। दूसरा, दे डिलीवर द न्यूक्लिक एसिड इंटैक्ट, क्योंकि वो पूरा जो प्रोटीनेशियस कैप्सिड के अंदर रहता है डीएनए। आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ हाउ यू नो वी कैन इंटीग्रेट द डीएनए इनटू अ वायरस। सो प्रोटीनेशियस कैप्सिड होता है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ वायरस, तो वहां पे वो इंटैक्ट रहता है एंड एज इट इज जाता है होस्ट सेल के अंदर, सो इट रिमेन्स इंटैक्ट ऑल्सो। वायरल जीनोम्स में स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं जिससे हाई लेवल जीन एक्सप्रेशन मिल सकता है, फॉरेन जीन एक्सप्रेशन मिल सकता है। बहुत सारे एनिमल वायरसेस की बहुत बड़ी होस्ट रेंज होती है, मतलब वो बहुत ज्यादा होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, सो रेप्लिकेट हो सकते हैं इन डाइवर्स सेल टाइप्स। मेनी वायरसेस कैन स्टेबली ट्रांसफॉर्म बाय इंटीग्रेशन और लेटेंट एपिसोमल रेप्लिकेशन, दैट्स दैट। लेकिन मेजर ड्रॉबैक्स क्या हैं वायरस मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन के? इम्यूनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी, दीज आर टू मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ दिस टेक्निक। जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं किसी भी वायरल वेक्टर का, वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन दे सकता है डेफिनेटली, क्योंकि जो होस्ट सेल है उसकी जेनेटिक पाथवे रुक जाता है, आई मीन पर्टिकुलर सेल के लिए। इस वजह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो सकते हैं, इंसर्शनल mutation and an insertional mutation because viral vectors integrate into the host genome randomly, तो इंसर्शनल म्यूटेशन भी हो सकता है कि बिकॉज सी वायरस जब हम इन्फेक्ट करता है किसी भी होस्ट सेल के अंदर, वो रैंडमली करता है, इट इज नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू यू कि आपको किस सेल को इन्फेक्ट कराना है। तो वो जो चीज है वहां पे म्यूटेशन भी क्रिएट हो सकते हैं, म्यूटेशन की इंसर्शन हो सकती है, सो जिस वजह से इसेंशियल जीन का कभी कभी फंक्शनिंग जो है डिसरप्ट हो सकता है। दैट इज ऑल्सो वन मेजर डिसएडवांटेजेस। Also, one more drawback of this technique is वायरस के अंदर जब हम फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं रहती है फॉरेन जीन को पैकेज करने की, so that is also one major. Okay, so that's that, and that's how we can introduce this DNA into the host cell, or basically the animal cell. These are a number of techniques which is widely used in the process. So yeah, thank you so much for watching. Please do like, comment, share and subscribe to my channel for more educational content. And if this video helped you in any way, please do like, comment, share and subscribe. If you have any particular suggestion to give, please feel free to comment also.